Man who has just received his degree at Brighton University, Yes. and right now he's back over here among us, Mr. Abhishek Mishra. Abhishek ji, namaskar. How are you, sir? How are you? You said Sussex University. क्या बात है? Sussex University, fine. I thought you were in Brighton, but anyway, Sussex University. And you've travelled all over England. You've travelled all over the world. You're a very well-travelled Renaissance man, and now you have come back over here. So, Are you back? It looks like he's still there. yeah, it looks like he's either in a very cold place. Delhi. दिल्ली में Okay. So, सर दिल्ली से सीधा अभी अयोध्या जाएंगे या वापस आएंगे मुंबई? अभी मुंबई आएंगे, फिर अपने के साथ जाएंगे. Wonderful, absolutely wonderful. So we'll be going over there too very shortly. So Jai Siya Ram, your thoughts on the Ram Mandir, sir? Abhishek ji? देखिए, that is something beyond thought. It is a matter of national devotion. It is matter of the expression of India's 1,000-year, 5,000, 10,000-year cultural heritage. So there are no thoughts on it. It's a matter of feeling. It's a matter of going back to our cultural roots, because Lord Ram represents the essence of India. He represents this, as Prabhu Saraswati said, the Toa has come back in India. He represents the Abhiman of India. He represents the essence of India. Lord Ram represents the root of India. That's right, absolutely. So in effect, Mr. Modi has restored the pride of India, which we have been struggling to restore for the last 496 years, which I think is the greatest achievement ever. He has restored the essence. I would go above pride. Okay, pride is still does not describe it appropriately. So pride can also be vanity. So yes. he has restored the essence of India, the root of self-respect. Sir, self-respect, essence, soul, that has been reawakened, which is absolutely wonderful. Absolutely wonderful. And I'll be very frank with you, this is really out of the world. This is absolutely fantastic. What has really happened. But in Delhi, for example, you are over there. अभी आप दिल्ली में हैं सर. और दिल्ली में इस वक्त बात चल रही है ज़्यादातर आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार साहब की. नीतीश कुमार साहब वापस आ गए बीजेपी में. क्या वो राम मंदिर की वजह से आए या कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से आए या लालू यादव जी से इतने तंग हो गए कि फिर उनको वापस आने पे मजबूर हो गए? आपको क्या लगता है अभिषेक मिश्रा जी? वो विकास करना होगा, वो भाजपा के साथ ही होगा. नीतीश जी को एहसास, तेजस्वी यादव पुत्र ऑफ लालू यादव, चारा घोटाला कन्विक्ट, इस व्यक्ति के साथ विकास में बिहार का नहीं कर सकता. तो फिर जो विकास की पार्टी है, जनता पार्टी है, वो विकास की पार्टी के साथ फिर से जुड़ गए. यहाँ पर आपके खिलाफ एक बात आती है. प्रशांत किशोर जी एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने पहले मोदी जी के साथ भी काम किया है, मतलब बीजेपी के साथ भी उन्होंने काम किया है. वो कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ना. भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और बिहार के विकास के लिए वास्तविकता में काम करना चाहिए. क्योंकि नीतीश जी का काम करने का तरीका वही है. 18 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से 15 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे. तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं देती है बिहार में? अभिषेक मिश्रा जी ये बताएं. ये विषय ये है कि मुख्यमंत्री, भाजपा के लिए मुख्यमंत्री पद हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा लक्ष्य है कि जो भी नागरिक है देश का, बिहार का, उसका. और अगर पार्टी हाईकमांड को लगता है कि इस वक्त जो नेतृत्व ऑलरेडी चल रहा है, कम उस मेन नेतृत्व को, सीएम पद को कंटिन्यू किया जाए कि हम बिहार का कल्याण कर सके, तो पार्टी ने यही देखिए ना, भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए बोला हम समर्थन देंगे, साथ देंगे आपका, अपने काम में लगे रहिए विकास के काम. प्रदीप जी, Mishra ji, the BJP says this is a decade of transformation. Decade of transformation, fifth biggest economy, digital revolution. और फिर आप जितने देखो, राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक हो, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, और जितने रिपोर्ट कार्ड है गरीब कल्याण स्कीम्स का. That is, BJP says this is a fantastic achievement, decade of transformation. But मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी says 10 साल अन्याय काल, और भारत जोड़ो यात्रा निकाला है न्याय का हक मिलने तक.
तो डू यू थिंक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन? वो 53 से 270 तक पहुंच पाएंगे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? अभिषेक मिश्रा जी, आपको पहले ही भविष्यवाणी आपकी डिबेट में की थी, जून के महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 20 सीट केवल आएगी देश में, और वो कहेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं है क्योंकि कांग्रेस हार गई, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जिम्मेदारी लेके कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। ये भविष्यवाणी मैंने आपको बहुत पहले कर दी थी, जब इंडिया अलायंस का लग रहा था कुछ हो रहा है। मैं तो पहले ही कहा था इंडिया अलायंस टूटेगा, खड़गे जी का इस्तीफा होगा और राहुल गांधी इटली जाएंगे वापस राजनीति छोड़ के। तीनों घटनाएं अब घटने वाली है। राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस प्रकार से इवेंट्स हो रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बीजेपी, चाहे वो ममता दीदी नाराज है, ममता दीदी ब्रोक द अलायंस, नीतीश कुमार ब्रोक द अलायंस, अरविंद केजरीवाल इज नॉट हियर नॉट देयर, कभी हाँ कभी ना, तो क्या आपको नो वी आर नॉट बीइंग सुपरस्टिशियस, वी आर नॉट बीइंग सुपरस्टिशियस। डेवलपमेंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद, द सेम डे पुनर्निर्माण के दिन ही मोदी साहब ने 1 करोड़ सोलर पैनल्स गरीबों के लिए, तो लगातार सोशल वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या यू थिंक द राम मंदिर निर्माण इज एज मोदी साहब गोइंग टू चेंज द एंटायर एंड वी आर गोइंग टू टेक अ क्वांटम जंप वेयर इंडिया इज कंसर्न्ड इन ऑल फील्ड्स? आपको पहले ही कहा था ना डिबेट में कि 22 जनवरी से रामराज प्रारंभ हो जाएगा, और जब रामराज प्रारंभ हो गया तो जो भी शक्तियां थी जो राष्ट्र के विरोध में, धर्म विरोध, संस्कृति विरोध, कल्याण विरोध, विकास विरोध थे, वो आपस में लड़ने लगे, टूटने लगे, उनको घबराहट हो गई, एक दूसरे को छोड़ने लगे। आज भी केजरीवाल जो है और चंडीगढ़ में हार गए, इनका आपस कांग्रेस में लड़ाई हो गया। तो रामराज शुरू होते ही जिन लोगों के अंदर भी राम जी के मूल्य नहीं थे, कल्याणकारी मूल, विकासकारी मूल, राष्ट्रभक्ति के मूल, धर्म के प्रति आस्था के मूल्य, उस सब में घबराहट हो गई, सब कमजोर पड़ने लगे, सब एक दूसरे को छोड़ने लगे। ये रामराज शुरू हो चुका है 22 जनवरी से। यही उसका चिन्ह है कि ममता कहीं जा रही है, सोनिया जी कहीं जा रही है, राहुल कहीं जा रहे हैं, केजरीवाल कहीं जा रहा है, खड़गे जी कहीं जा रहे हैं, नीतीश जी हमारे साथ वापस आ गए, लालू पीछे हट गए। यही तो है रामराज। जो लोग राम जी के साथ नहीं है वो घबराएंगे, छोड़ेंगे जी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आज की तारीख में क्या आप खुश हैं जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है? मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं। आप खुश हैं क्या? नहीं, खुश क्यों? भाजपा का हर कार्यकर्ता आनंदित है। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता छोड़िए, कार्यकर्ता जो भी है गांव-गांव तक, वो इतना आनंदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक 1980 में शुरू की गई पार्टी, आज पूरा भारत की जनता उसको इतना प्रेम दे रही है कि 350 सीट लोग आज मैं दिल्ली में था, लोग मुझे कह रहे थे कि आपके 350 आ रहे हैं, कंफर्म्ड आ रहे हैं। मैंने कहा जी अवश्य 350 से आगे जा रहे हैं। जनता ही कह रही है कि 350 देना है भाजपा को। बताओ इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये चुनाव के बाद राहुल गांधी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। वो इटली से पहले उन्होंने पद यात्रा की, अब वो बस यात्रा कर रहे हैं, और इसके बाद वो हवाई यात्रा करके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी मैंने पहले भी की, आज फिर से दोहरा रहा हूं। क्या बात है, सब सिर्फ इटली जाएंगे, थाईलैंड नहीं जाएंगे क्या? हमने तो नहीं, वहां पर जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक आपका प्रश्न, जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ परमानेंट एड्रेस इटली हो जाएगा उनका। परमानेंट एड्रेस इटली हो जाएगा। इटली में घर है वैसे उनका अभी। देखिए साहब, ऐसा है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है दक्षिण में। दक्कन के दक्षिण में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, 2019 में भी नहीं थी, तब भी आप इतनी ज्यादा अच्छी सीटें जीत कर लाए थे। क्या इस बार भी 2019 आप दोहरा पाएंगे? दक्षिण में 5 स्टेट हैं दक्षिण के, क्या उसमें आपकी उतनी ही सीटें आएंगी या ज्यादा आएंगी जो कि 2019 में आई थी? अभिषेक जी, चारों दिशाओं में धर्म का ध्वज फहराया जाए। धर्म का चारों दिशाओं में है, ये धर्म का ध्वज है। धर्म से ही राज सत्ता चलती है, धर्म से ही कल्याण होता है। ये जो धर्म का ध्वज फहराया गया है, तो चारों दिशाओं से आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को। चारों दिशाओं से, इंक्लूडिंग द साउथ, इंक्लूडिंग द 5 स्टेट्स ऑफ द साउथ, यू थिंक यू विल? सब जगह से
आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी प्रदीप जी, आप कुछ पूछ रहे थे। Abhishek Mishra ji, you know, the BJP said today that Congress was running लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, and मोदी जी के आने के बाद the BJP has, you know, totally defeated the परिवारवाद। और आपने गिना के दिया, कश्मीर अब्दुल्ला फैमिली, पंजाब बादल फैमिली आउट, हरियाणा हुड्डा फैमिली आउट, यूपी यादव फैमिली आउट, बिहार लालू यादव फैमिली आउट, महाराष्ट्र ठाकरे फैमिली, शरद पवार फैमिली। तो परिवारवाद क्या लोग ने अपने आप में वोटिंग करके इनको बाहर करना, एंड इज अ चेंज विजिबल अमंग, एंड देन बीजेपी टॉक्ड अबाउट ऑल इंडिया द गांधी फैमिली। तो आर वी सीइंग द एंड ऑफ परिवारवाद? अभिषेक मिश्रा जी, हैज बीजेपी बॉट न्यू ट्रेंड्स in Indian politics? I go in a larger vein, not the end of Parivarvad per se. It is the end of people who only work for their own Parivar. There could be somebody who wants to serve, and his father or mother may have been in politics. So I am saying this Parivarvad, like the Stalin family, Gandhi family, all these family, Lalu family, where they only work for themselves. That kind of Parivarvad Modi ji has brought to an end. Yes, if there is genuinely someone, son or daughter of some parent who is a politician and they want to serve, they are welcome. Everybody has to serve. Nobody has a right to loot. Yes, the Parivarvad or loot has been defeated here. Parivarvad, where destiny can do dacoity, has been defeated here. It is a defeat of dacoity of Parivarvad. That kind of Parivarvad dynasty has been defeated, uprooted from Indian politics. Abhishek Mishra ji, the other thing which is coming at the moment is that all that we are hearing is about ED raids, Enforcement Directorate raid, Director of Enforcement raids on Mr. Hemant Soren, on Mr. Lalu Yadav, on Rabdi Devi, on Tejasvi Yadav, and then again one summons after the other to Mr. Arvind Kejriwal. Why this sudden activity suddenly? Because could it be related to the Lok Sabha elections, do you think? It is related to people who have done criminal activities. The law catches up with them. And law takes its own course. It has its own timing to catch people when they least expect it. So it is a natural course of justice. Like Gautam Buddha is El Dham Sanatano. So from eternal times, law has been catching culprits. So this has nothing to do with politics. It is an eternal thing, nothing to do with elections. The law, the hand of justice, the divine hand of justice always catches the culprits. Right. You know what happened? What happened here in Maharashtra? In Maharashtra, the reservation, Maratha reservations ended successfully, where Eknath Shinde ji managed to convince Jalange Patil और Navi ठाणे में ही वापस चले गए, accepting that we have won the victory, and Devendra Fadnavis ji appreciated. Ajit Pawar ji said yes, we have done it. Now, if you look at the entire thing, Chhagan Bhujbal ji is upset. He says हमारे मुंह से घास छीन के ले गए. That is said in Marathi, थोडा तून घास घेऊन गेलं. And he says, हे मराठाचा फसवणूक या ओबीसी वर अन्याय, ये समझ में नहीं आ रहा है. तो how are you going to pacify Bhujbal ji? Because he is a big OBC leader. भले Fadnavis ji has come out and said that I will talk to Bhujbal साहब. How do you see जो inconsistency जो है उसको कैसे सुधारे? No inconsistency. Modi ji has given one mantra. That mantra can cure all social evils. That mantra is Sabka Saath, Sabka Vikas. And once Bhujbal ji remembers the mantra, he is a very great leader, senior leader of the party, of the alliance, he will definitely walk hand in hand with Modi ji for development. So, Sabka Saath, Sabka Vikas is the mantra which will solve all issues. The only thing that as far as Mr. Bhujbal is concerned, he is very apprehensive about is that the Maratha reservation should not eat into the 27% OBC reservation that already exists. That's all that he needs to be convinced about. And I'm sure Mr. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis will be able to convince him of that, which is alright. But the only thing is, what has been issued by the Maharashtra government is just a notification inviting suggestions and objections to Maratha reservations. Nobody is sure when Maratha reservation will actually be given. Abhishek Mishra ji, why that? Is that because that's a process which has to be followed, or why? Vedant ji, you are a very senior journalist. You have seen India
from very long time closely. The BJP's core philosophy was written by Deendayal Upadhyay ji. Must be knowing that. And it is a philosophy of integral humanism, which in Hindi means Antyodaya. Now, Antyodaya means that the last person, his social, economic, his cultural, all kind of development is the duty of the people who are serving and having administration in their hands. So BJP goes by Antyodaya. So no one should worry 20% OBC, what Maratha. Antyodaya will happen. Every citizen will have his financial, cultural, all kind of social empowerment. For example, अब घर घर में जो नल मिल रहा है जी, वो नल जाति नहीं देखता है, वो देखता है ये नागरिक। नल केवल नागरिक देखता है और नागरिक को घर में पानी दे देता है। वो मैं कह रहा हूँ अंत्योदय भाजपा। जब मोदी जी ने घर घर लाइट दिया, सबको गरीब को घर दिया पीएम आवास योजना के तहत, तब ये नहीं देखा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, तो यही देखा ये भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक को घर मिलेगा, भारत को नल में जल मिलेगा, भारत के नागरिक को बिजली मिलेगी, भारत के नागरिक को सड़क मिलेगा, भारत के गरीब नागरिक को फ्री में स्वास्थ्य में 5 लाख तक उसको वहां पे इलाज मिलेगा। मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में अंत्योदय होता है कि आखिरी व्यक्ति का कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण होगा, कल्याण होगा, सांस्कृतिक कल्याण होगा। कल्याण की भावना अंत्योदय से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी सबका कल्याण करेगी। तो किसी प्रकार की जाति पाति भेदभाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब नागरिकों का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब सबका कल्याण होगा। क्या बात है सर जी। अभिषेक मिश्रा जी, मगर जो आपकी 10 साल का ट्रांसफॉर्मेशन, यू सेड डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, Prime Minister Modi talks about 10 years, a decade of transformation, and you got a fantastic, impressive report card. But the Congress, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge says 10 साल अन्याय काल, 10 years अन्याय हो गया. So the यात्रा है social, economic and political justice, social, economic and political न्याय, युवाओं को न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक का न्याय. So are they trying to say that the BJP has not been looking on these issues where woman is concerned? They highlighted the woman, जो आज crimes against women has increased 32%, shramik unemployment still increased. So how are you going to combat this यात्रा? भले आप बोले कि छोड़ के जाएंगे वो तो ठीक है, but political wise कैसे आप fight करेंगे इनको? ये अन्याय ये हुआ कि राहुल गांधी जो कहता है मैं पॉलिटिक्स जहर है, उसको सत्ता के खेल में सोनिया गांधी लाई और उस आदमी को लगा कि मैं युवराज हूं, मुझे सत्ता वैसे ही दे दो भारतीय जनता ने मोदी जी को चुन लिया। तो वो आदमी बहुत परेशान है, गुस्से में है। राहुल गांधी का उसको महसूस हो रहा है ये अन्याय हो रहा है, मैं डायनेस्ट हूं और सत्ता नहीं दे रहे हो मुझे भारतीय जनता। एक डायनेस्ट को, युवराज को राहुल गांधी रो रहा है कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हारा विकास नहीं कर सकता लेकिन मुझे दो, क्योंकि मैं जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का वंशज हूँ, मुझे दे दो सत्ता, फिर मैं मस्ती करूंगा। तो वो बेचारा सोच रहा है राहुल गांधी कि इसके साथ अन्याय हो गया। जो आप कह रहे हो ना, जो खड़गे जी कह रहे हैं अन्याय हो गया, वो अन्याय ये हो गया। राहुल गांधी को लगा कि मैं तो डायनेस्ट हूँ, सत्ता मिलेगी। जनता ने कहा नहीं, जो विकास करेंगे मोदी जी उनको हम सत्ता देंगे। तो राहुल गांधी इस अन्याय से गुस्सा है कि मैं भले तेरा भला नहीं कर सकता देश की जनता, लेकिन सत्ता क्यों नहीं दिया मुझे, मेरा तो हक था, जनजात हक था। राहुल गांधी की नजरों में तो हक मानते हैं अपना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि as far as you are concerned, as far as the BJP is concerned, they are not really bothered per se about the relevance of Mr. Rahul Gandhi's Nyaya Yatra. You don't think it's going to have any effect per se? राहुल गांधी ये निकला है कि भाई मुझे न्याय दो, मुझे सत्ता दो, मैं तंग हूँ, मैं युवराज हूँ, मैं शहजादा हूँ, मैं गांधी परिवार का हूँ, सत्ता दो, न्याय दो मुझे सत्ता देके, मुझे एंजॉय करना है, याशी करनी है। राहुल गांधी की नजरों में उसका भावना ये है, तो इसलिए वो निकल पड़े। पहले तो वो पैदल चले, फिर बोला कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, कुछ लोग वोट नहीं कर रहे मुझे, तो बस में बिठा लो। अगर बस के बाद नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब राहुल गांधी गुस्से में कि न्याय मुझे नहीं मिला, मैं डायनेस्ट को सत्ता नहीं मिला, मुझे सत्ता चाहिए था,
मस्ती के लिए नहीं दिया भारत की जनता ने, मोदी जी को विकास के लिए दिया। मैं देश छोड़ के चला जा रहा हूँ, अब मैं गुस्सा हो गया हूँ खड़गे जी, अब मैं इटली जा रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी को न्याय अब इटली में शायद मिल जाएगा। And Mr. Abhishek Mishra, by the way, has been sticking on to this now for a very long time. He's been saying this for a long time, that very shortly, as soon as the Lok Sabha election results are out, probably Mr. Rahul Gandhi will disappear. He'll just go away, as he has done so many times before. And this time, perhaps, will he be coming back? You think he'll come back? No, मतलब इतने गुस्सा हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे? नहीं, वो समझ गए ना राहुल गांधी की। अब तो लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, काम चाहिए उनको, विकास चाहिए। अब हमको नहीं देगी सत्ता जनता देश की। अच्छा, राहुल गांधी को देश से प्यार तो है नहीं, अगर सत्ता नहीं मिली तो वो कहेगा मैं क्यों आऊं। अब देखो, आप पहली बार समझ जाओ, खेल समझो। जो आदमी पहली बार वॉकिंग कर रहा था, जब सत्ता नहीं मिली, 3 राज्यों में हार हो गई, तो उसे कह रहे मैं अब वॉक नहीं करूंगा, बहुत मेरे कोई मतलब नहीं है, बस में बिठा लो थोड़ी देर के लिए चाहिए तो। अब जब बस से भी वोट नहीं मिलेगा, वो कहेगा अरे जाओ तुम लोग, खड़गे कांग्रेस पार्टी सब जाओ, चल के बस में बिठा के, कोई वोट मिला नहीं, सत्ता मुझे मिली नहीं। We just had a spokesperson from the Congress just now, and that spokesperson from the Congress said that the India alliance is intact. नीतीश जी के जाने की वजह से कांग्रेस का बड़ा फायदा हुआ है और इंडिया अलायंस को 300 प्लस सीट मिलेंगी लोकसभा 2024 में, ऐसा उन्होंने कहा है। अभिषेक जी, देखो, 300 सीट का सपना 300 साल में भी सारा विपक्ष एक हो जाए, जो प्रभु राम के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी चली है, 300 साल में भी विपक्ष हमारे आसपास नहीं आ सकती। 300 सीट छोड़िए, 300 साल तक विपक्ष जो है हमारे आसपास नहीं आएगी। ये सनातन राम भक्तों की सरकार है और सनातन समय तक राम भक्ति चलती रहेगी और सनातन समय तक राम भक्तों की सरकार चलती रहेगी, सेवा के लिए, क्योंकि राम भक्त हनुमान जी हमेशा सेवा करते हैं। साहब, उसके सामने तो उसके जो अभी आपने कहा, उसके सामने तो सारी आर्ग्यूमेंट फेल है, उसके सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखो जी, ऐसा भाग गई, नीतीश जी लौट आए, केजरीवाल भाग रहा है। आप देखो ना, 22 के बाद सारे सब सोरेन गायब हो जाते हैं। इंडिया अलायंस में कौन बचा? तो इंडिया अलायंस को, अगर इंडिया अलायंस रहती है, मान लीजिए, हो सकता है कि ना भी रहे, आपने तो कह दिया कि कांग्रेस को 20 सीटें आएंगी, हमारा अनुमान 24 का था, लेकिन आपने 20 का है, चलो ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस को कितनी मिलेंगी सीटें आपके मुताबिक? नहीं, मैंने पहले भी डिबेट में बताया था, इंडिया अलायंस को अलायंस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी लुटेरे की, सब लुटेरे मिल गए थे, लगा कि अरे लूट का हिस्सा मिलेगा। अब लुटेरे को लग रहा है हमारे लूट कामयाब नहीं, हिस्सा नहीं मिलने वाला है, छोड़ हमें क्या मतलब है। ये सब देश, इनको देश से कोई प्यार नहीं है, लगा लूट नहीं मिलने वाला, सब भागे। ममता बोले छोड़ इंडिया अलायंस, केजरीवाल बोले छोड़ इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस ही नहीं रहेगा। मैं पहले भी कहता था इंडिया अलायंस ये नकली ठगों का गठबंधन है, ये ठग बंधन है। तो ये अलायंस, अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, 20 फरवरी तक ये अलायंस कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, आप देखते रहो। 20 फरवरी तक इंडिया अलायंस खत्म। ये कहा जा रहा है, एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पंडित्स ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो कांग्रेस को मिनिमम 100 से 150 सीटें आ सकती हैं, अगर अकेले लड़ती है तो। अभिषेक मिश्रा जी, कांग्रेस अलायंस में लड़े, कांग्रेस अकेले लड़े, 30 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा जी। 20 सीट से ज्यादा नहीं। No, you know, after these reservations, Abhishek Mishra ji, do you think that Eknath Shinde ji has emerged as a tall Maratha leader? मराठा लीडर्स में जितने भी शरद पवार जी है या उनके डॉटर सुप्रिया सुले हो या अलग अलग कांग्रेस के जितने दिग्गज मराठा लीडर है, उन सब से एकनाथ शिंदे जी का कद बढ़ गया है। He has become a very tall Maratha leader because he has done what Jalange Patil has accepted, has done, but none of the other Maratha leaders have been. 54 लाख नोंदनी जो मराठास को, हक का कुनबी मराठास को मिलना चाहिए था, वो आज जाके मिला है। एंड चीफ मिनिस्टर शिंदे जी इज टेकिंग फुल क्रेडिट फॉर दैट। ही हैज emerged as a big leader. How do you see Abhishek Mishra ji, taller than most of the Maratha leaders like Sharad Pawar ji? वो मुख्यमंत्री है तो ऑलरेडी टॉप लीडर है, स्टेट के सबसे बड़ी लीडर है, और उन्होंने अपने बड़प्पन का दिखाया और समस्या का हल किया। ही हैज डन हिज ड्यूटी एज अ चीफ मिनिस्टर।
He's already a tall leader. He's already the tallest leader in the Maharashtra, as the chief minister of the state. So you believe that Sharad Pawar ji could have done it earlier? जैसे फडणवीस जी आरोप लगा रहा कि Sharad Pawar ji was always anti-Maratha. What happened now could have happened 10 years back, 17 years back, because these people are eligible. It is now that the records have been, gone into, and they thought they deserved it and they didn't get it. So you think upstate Sharad Pawar ji also these things could have been done earlier? Abhishek Mishra ji. But earlier the focus was secular politics. They were not focused on giving social justice. The earlier focus was just to secular politics and earn the vote. Earlier was the vote politics. Now it is the work politics, social justice. Sharad Pawar failed to give social justice. That's what he's saying. Sharad Pawar ji focused on secular politics. On secular politics, right? And that's a subject for a very long discussion as to what secular politics really means, if it means anything at all. But in the meantime, congratulations to you, congratulations to everybody over the inauguration of the Ram Temple. I am very happy, very frankly speaking. I still can't believe it. I am ecstatic, as I keep telling everybody. I still have to pinch myself कि यार असल में हुआ है कि नहीं हुआ. फिर दोबारा देखनी पड़ती है फुटेज देखने के लिए कि यार असल में हो गया है. जी आप कुछ बोल रहे थे. You were about to say something. जी. अभिषेक जी. Their secular politics was pseudo. Advani ji कहते हैं pseudo secular politics. जी. और वोट के लिए. जी दुरुस्त बात. Thank you so much, No, Abhishek Mishra ji. Sir, if he wants to sing a good couple of hum about Ram Bhajan, कोई राम भजन आपको बहुत प्रिय है, वो 2 लाइन गा सकते हो आप. बजाज साहब का प्लेटफॉर्म खुला है. If you want to. क्या था? 22 जनवरी से पहले कह दिया था कि कुछ लोग वहां आएंगे नहीं और फिर भागेंगे. वो मैंने एक चौपाई हनुमान चालीसा की बोल दी थी कि निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. तो 22 बहुत सारी पार्टी वहां नहीं आई थी. दुरुस्त बात. राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे. मतलब जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं है तब तक कोई राम मंदिर में आ नहीं सकता है. सोई जो राम रचि राखा जी. राम का नकली यात्रा कर ले सत्ता के फ्रस्ट्रेशन में. तो प्रदीप जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि कोई राम भजन तो गा दो यार जाने के पहले. अरे राम जी ने मोदी जी को चुन लिया है राष्ट्र की सेवा के लिए. वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है. एंड nobody else could have made the राम मंदिर except Mr. Modi. Let's be very very clear. क्योंकि हम तो थे ना वहाँ पे, हम तो पहले दिन से जुड़े हुए, हम तो 1989-88 से जुड़े हुए हैं. खैर छोड़िए. But great for everybody. Congratulations to you. Congratulations to the entire country and congratulations worldwide to everybody who's a Ram Bhakta. Abhishek Mishra ji, thank you so much for joining us and hope to see you in Mumbai soon. Jai Shri Ram. Thank you. प्रदीप जी आपने जो कहा मुझे बड़ा हर्षोल्लास का मुझे बड़ा अनुभव हुआ जब आप सब लोगों ने गाया यहाँ पे कल. So can we see that again? I really want to see that again. You know the lovely songs that were sung right here on this show yesterday. Can we have that again? That'd be really wonderful. संजय ठाकुर साहब ने पहले गाया, फिर उसके बाद आपने गाया, फिर उसके बाद लक्ष्मण सौजी साहब ने. वो क्या है कि वो राम सुरक्षा स्तोत्र जो है वो पूरा का पूरा सुनाया. जबरदस्त. And I think Sanjay Thakur ji ended up with one more song. Yes. So can we see that please? Let's take a look at what took place here yesterday. भगवान के बारे में भजन है, फोक सॉन्ग है, वहां का बहुत मशहूर है. त्रिभुवन विदित अवध जेकर गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ. पूरे संसार को पता है कि प्रभु श्री राम का गांव उनका नाम क्या है, लेकिन जब आप लोग जाके उसके दर्शन कराते हैं, वहां की माटी का दर्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु राम का दर्शन हो रहा है, अनुभूति हो रही है. तो एक 2 लाइन मैं भी जोड़ दूं, बिकॉज आप खुद उनका महिमा गा रहे हैं. लक्ष्मण सावजी साहब, आप अयोध्या में हो तो 2 लाइन ठाकुर साहब हम गा रहे थे जो आप रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा राजा राम ओ राजा राम ओ सीता राम रघुपते राघवा.
सिया राम, क्या बात है। जय सिया राम। राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। क्या बात। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम। क्या बात। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वामी रामचंद्रो दयालु नानम जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा, पूर्वतो मारुतिर्यस्य त्वं वन्दे रघुनंदनम। क्या बात। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। क्या बात है साहब, क्या बात है। जय सिया राम, जय सिया राम। इतना सुंदर था, इसे अंत भी भजन से ही कर देते हैं बजाज साहब। बोलिए सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो प्रभु श्याम चंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान जी की जय सिया राम। Jai Shri Jay, Ram. that was lovely. Pradeep ji, That's that was very nice. fantastic. Yes, yes. That was really truly fantastic. Wow. You promised you would sing again. Ah, we can. Please go ahead. Gaye. Beautiful, beautiful song from Guide, where he says, Hey Ram, Hey Ram, Hey Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shri Siya Ram, Hey Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Jai Siya Ram, Hey Ram. Lovely. Jai Siya Ram. Jai Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Zabardast. Zabardast. Absolutely wonderful. लगता है राम जी की कृपा। मुझे याद है भी राजेश सजीजा जी एक बार जब हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा था आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके सर के ऊपर राम जी की खास कृपा है। सबके मुझे भी लग रहा है, सबके ऊपर, मुझे भी लग रहा था। मेरे ऊपर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आपके ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और चलते चलते लेट्स टेक ए कपल ऑफ कमेंट्स कुछ। और आप जरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू शेयर इट, प्लीज डू लाइक इट, एंड प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स। लेट्स टेक a few comments before we go. Today again was a lovely show. Let's take a look at some of the comments which have come in. Can we take a look please? Again दीपक केदार साहब, दीपक केदार साहब की क्या रिस्पॉन्स है साहब का। गुड कल्याण कुत्ता मेरे TTQNDM. I hope it's not going to be only Mr. Deepak Kedar. Can we have a mix? Yes. चलिए आगे बढ़िए। Again मुझे लग रहा है ये तो दीपक केदार स्पेशल है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, पवन खिलारे 9644 जी। बढ़े आगे बढ़े। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। And this of course is Mr. Gade Patil. Yes. No, Hanuman Pawar. Yes. Hanuman Pawar sir. Unknown is best. 14 hours ago, please ask Rahul to make public Congress private an illegal MOU with China. What is he hiding? Is he hiding anything? I don't know. Anyway, chaliye. Modi will not return as Prime Minister. Mr. Deepak Kedar. Can we take a look? What a joke. Kamlesh Kumar. VWOGJ. I think Mr. Modi is coming back with 350 plus. We have been saying that for the last 2 years. पिछले 2 साल से हम लोग यही बोल रहे हैं. Even before the inauguration of the राम मंदिर के उद्घाटन के पहले. और ये तो of course निजाम साहब, ये असम का वाकया है जहाँ पर वो जाना चाहते थे। कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने मंदिर की कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देने के लिए जो कुछ भी हो सकता है खूब जोर लगाया, लेकिन रुक नहीं पाए। कांग्रेस रामद्रोही है, खुलेआम बोल सकते हैं। और राहुल गांधी डज नॉट हैव एनी रिलीजियस आइडेंटिटी, ही इज नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम, सो ही शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन मंदिर कॉम्प्लेक्स। सो सेज श्याम सिंघा
5374. That's it. Thank you very much. I think a temple should be open to all, whether you are a Hindu, Muslim, Sikh, a Jain, Buddhist, Christian, Jew, whatever. It's a house of God. And everybody should be welcome in the house of God. That's my opinion, of course. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. याद रखें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजते रहें. We love your comments. We absolutely love your comments. And what did you think of Pradeep ji singing? You must tell us that too. I think it's wonderful. I think it's really and truly wonderful. और जो भक्ति है प्रदीप जी के अंदर श्री राम जी के लिए, क्या बात है साहब, जबरदस्त, मानना पड़ेगा. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय सिया राम. जय